And shifting the spotlight closer home, ladies and gentlemen, ever since Prime Minister Narendra Modi pushed for uniformity, a massive debate has erupted across the country over the Uniform Civil Code. Now, while the Law Commission is going full throttle, speaking to all stakeholders, earlier in the day, the Parliament panel has summoned the Law Commission chief on the 3rd of July. Now, besides the Law Commission, the panel headed by BJP Rajya Sabha MP Sushil Modi will also hear the views of the Department of Legal Affairs and the Legislative Department. And amidst all this, Uttarakhand is preparing its own Uniform Civil Code draft. Now, according to the Uttarakhand government source, the draft is proposed for the proposed UCC in the state has provisions for the age of girls for marriage and conditions for live-in relationship, among others. There is also very clearly equal rights for every individual to be able to adopt, and equal rights in inheritance for male or female member of the family. And in the case of a dispute or in the case of a child being orphaned, the rights would go to the grandparents. There are many other clauses, about 15 odd clauses that we've accessed here at CNN News 18. Let's try and understand and put it down for you. These are some of the recommendations, the 15 recommendations that could be part of the draft that is going to be submitted to the Uttarakhand government by the panel that was set up by the government in the first place, led by Justice Ranjana Desai. Age for marriage, the age of girls for marriage will be increased to 21 years from the present 18 years. And the thought process behind this is that women or girls should be able to graduate, complete their education before marriage. Marriage registration, the draft has suggested making registration of marriages mandatory. Without registration, they cannot avail the benefits of any government scheme that accrues to the married. Village level marriage registration facility should be set up so that registration is made simpler, easier and very close to where the marriage is conducted. Divorce rights. The draft gives equal grounds and rights to both husband and wife, irrespective of the faith, to seek divorce. Basis of divorce will be applicable to both the husband and the wife. Polygamy. The UCC draft bans the practice of polygamy, the custom of having more than one wife, which is a feature among Muslim personal law, which is allowed within Muslim personal law. Recommendation 9 is Halala and Iddat. The proposed UCC draft mentions discontinuing the practice of Halala and Iddat, terms commonly used while settling marriage disputes among Muslims, and also certain parts which are brazenly violating the rights of women, some of these practices. Girls will get equal share in inheritance as boys. That's another recommendation. The next recommendation for live-in couples, it will be mandatory for live-in couples to inform their parents and also to register. They will have to not just inform their parents, they will have to announce or register the fact that they are a live-in couple or a pair. Simplified adoption process if the child is an orphan. Child's custody with grandparents in case of a feud. Population control. The draft has reportedly recommended fixing the number of children, and everyone will have the right to adopt. So these are some of the standard measures or perhaps path-breaking measures that have been suggested in the UCC draft by this 4-member panel, and we've accessed some of them. Now, it is not only in Uttarakhand. Several other states are mulling implementation of the UCC. As the Uttarakhand panel submits a draft to the Dhami government, 4-member expert committee will examine the legislative competence of the state legislature to enact a law to end polygamy. In Haryana, Uniform Civil Code is being studied for implementation. In Madhya Pradesh, state government to form a panel to study the law. In Uttar Pradesh, decision on Uniform Civil Code only after a consensus is made. Gujarat, the state to form panel to assess the aspects of the UCC. Goa, the only state to implement the Uniform Code because it has got it in legacy from the time when it was under the Portuguese, and they've carried on that aspect. Joining us now is the former Chief Minister of Uttarakhand, Harish Rawat ji. Harish Rawat ji, namaste, Jai Hind. Thank you very, very much for your time. My first question is, Uttarakhand ready for UCC? यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर हर राज्य का कैसा अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? उत्तराखंड का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, मिजोरम का अलग होगा। तो यूनिफॉर्म, यदि देश का एक कानून जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तराखंड का ये ड्राफ्ट उसके अनुरूप है, तो फिर
ये तो सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए। और सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए यदि आप संविधान से प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 44 का ये रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसमें नेहरू जी की प्रेरणा से उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको सम्मिलित किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक आम राय बनाई जाएगी, जब राज्य हमेशा कोशिश करता रहेगा। आप आम राय बनाने की कोशिश करिए, संविधान से शक्ति लीजिए, प्रेरणा लीजिए। तो वो काम तो अभी हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिफरेंट तरीके का कल्चर है, और आदिवासियों में, जनजातियों में प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के, गोद लेने के अलग अलग कानून हैं। कई महिला प्रधान समाज है, जैसे मेघालय में आदि में जो है। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ भी शादी ब्याह के कानून है, उनमें बहुत सारा अंतर है। इधर आपने देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल ने भी उन्होंने भी सवाल उठाया है कि भाई सब धर्मों के लोगों से बातचीत करिए, जो और सब धर्म हैं। आप केवल यदि मुसलमानों की बात लेकर के कुछ रिएक्शन में कानून बनाएंगे तो कानून देश का कानून नहीं हो सकता। देश कभी रिएक्शन में कोई कानून लेजिस्लेट नहीं करता है। आप आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसके लिए एक आम राय सबसे परामर्श करिए, बनाइए। और हमारे देश में संविधान बनाने के बाद हमने बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे अधिकार अलग अलग सामाजिक ग्रुपों को दिए हैं। जैसे आरक्षण का है, दूसरे अधिकार है, उन पर ये देश का सारे देश के एक कानून का कोई असर उन पर तो नहीं पड़ेगा। उसको वे करना, उसको तौलना बहुत आवश्यक है, उसकी मीमांसा करना आवश्यक है। कल आपने बना दिया, पता चला लिटिगेशन का और दरवाजा खुल गया। पहले से ही आरक्षण पर कई तरीके के भाजपा के समय में आरक्षण आदि कई सवाल उठाते थे, तो हमको डर है कहीं ये देश ने जिनको सर्वसम्मति से जिन कानूनों को बनाया है, जिन चीजों को आगे बढ़ाया है, उन पर कोई असर न पड़े। तो ये सारी बातें जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो जिंदगी में और भी बहुत सारे गम हैं हिंदू मुसलमान के अलावा। इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे कई कुपोषण आदि सवाल है, महिलाओं पर अत्याचार का सवाल है। उधर सीमा के अंदर चीन बैठा हुआ है, गांव बना रहा है हमारी सीमा के अंदर। देखे तो पुल पुलिया बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। मणिपुर में इधर वो लगी हुई है। आतंकवाद अभी भी नहीं रुका है कश्मीर में, सारे दावों के बावजूद जो है। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में एक सुविचारित तरीके से जो होना चाहिए, केंद्रीय होना चाहिए। रहा सवाल उत्तराखंड में, तो ये तय करना है कि देश का एक कानून बनना है या उत्तराखंड अलग अलग है। यदि एक खंड खंड कानून है तो उत्तराखंड बनाए। पर कॉमन सिविल कोड की बात अगर करें हरीश जी, तो फिर इसमें गोवा में तो वो कानून पुर्तगाली टाइम से चला आ रहा है, तो गोवा में तो यूसीसी लागू है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब तक सेंट्रली कानून नहीं बनता, स्टेट्स को तो आजादी है कि वो इस पर विचार करें और खुद कानून बनाएं। देखिए, गोवा में जो है एक वो थी, पुर्तगीज के समय से था। कुछ लोगों ने किसी चीज से कर लिया, लेकिन उसके बाद राज्यों ने, राज्य तो अस्तित्व में है ना, किसी राज्य ने नहीं बनाया। ये उत्तराखंड में चुनाव आया तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी, और गुजरात में आया तो आपने गुजरात में करना शुरू कर दिया, कर्नाटक में आया तो आपने कर्नाटक में कहना शुरू कर दिया। तो ये चुनाव ओरिएंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कोड है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इनका चुनाव से क्या मतलब है? क्या चुनाव में शादी ब्याह के आदि के पर्सनल लॉज आदि ये सब कानून उसमें बनेंगे? अब मंदिरों में प्रवेश में महिलाओं वर्जित है कई जगहों, और परंपराएं बनी हुई हैं, उनको कानून जैसी सैंक्शन प्राप्त है। कई मंदिरों के अंदर पूरी आदि में जो है दलितों का प्रवेश, दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश, यहाँ आदिवासियों का प्रवेश, हमारे महामहिम राष्ट्रपति को उन्होंने प्रवेश नहीं दिया। तो ये इस तरीके की परंपराएं हैं, उनको आप कैसे गवर्न करेंगे? और इसका पहले से दायरे में नहीं आते ना, असर नहीं पड़ेगा। जैसे आरक्षण दूसरी तीसरी चीजों पर, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। पहले से जो
पारित कानून है जिसमें कई सामाजिक समूह को हमने कई तरीके के प्रोटेक्शन दिए हैं देश के संविधान ने, उन पर असर नहीं पड़ेगा। इस काम को क्या पुष्कर सिंह धामी जी या उत्तराखंड तय कर सकते हैं इन बातों पर ये सारी नेशनल इश्यूज है, तो लार्जर नेशनल इश्यूज में देहरादून से बाहर निकल करके काम करना पड़ेगा। देहरादून में तुमने अपना उस समय सिक्का चलाना था, खोटा सिक्का, तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड कह दिया। नहीं पर हरीश जी, ये तो लेकिन विपक्ष के पास ये हमेशा दो धारी तलवार है, करो तो भी फंसो, ना करो तो भी आप सवाल पूछेंगे। नहीं, विपक्ष है, हमको सवाल उठाने का अधिकार है जी बिल्कुल, लेकिन आप ये तो जो सत्ता में लोग हैं उनको सारे विचार करने पड़ेंगे कि इसके क्या असर पड़ेंगे। कल मान लिया सेंटर ने लेजिस्लेशन बना दिया तो ये उत्तराखंड की सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। तो इसको कौन इंश्योर करेगा कि आपने उत्तराखंड के लेजिस्लेचर का इतना समय क्यों बर्बाद किया, हमारा इतना धन क्यों बर्बाद किया, इसका कौन जवाब देगा? या तो ये हो कि ये उत्तराखंड के कानून को एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है तो हम कहेंगे बका धामी, आपने एक माइलस्टोन गाड़ दिया। और जब ये नहीं होना है तो ये सब इट इज एक्सरसाइज इन फुटाइल, नथिंग। उत्तराखंड इज गोइंग टू गेन नथिंग आउट ऑफ इट, और न नेशन को इससे कोई फायदा होने जा रहा है। ये तो ऐसा है, कुछ ज्वलंत सवाल है जो है महंगाई का है, पर वो विषय तो है, लेकिन देश की सीमाओं में चीन तो वो है, ये विषय, ये जस्ट बिकॉज़ देयर आर अदर इश्यूज, कुछ लोग मालदार होते जा रहे हैं। हरीश जी, but just because there are other issues, that doesn't mean that you will not address some of the core issues which are enshrined even in our constitution. Directive principles of state policy में आर्टिकल 44 में ये लिखा है कि state must secure a uniform civil code for its citizens. और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी has not taken a position on it yet. बट आपको क्या लगता है, देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं? आपका निजी ओपिनियन, व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन सर? ये इस पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखिए, बड़े डिटेल में बातचीत हुई है। और अनुत्तवत्वा जो है, जब ये हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं है अभी, क्योंकि देश के सामने और बहुत सारे हालात है। जब सुटेबल समय आएगा तो नेहरू जी ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे करके कहा आयरलैंड के कि नहीं, जो है हम अपने वहाँ एक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाते हैं और उसके तहत जो है इनको सम्मिलित करवाते हैं। तब आर्टिकल 44 का समावेश करवाया गया, उसमें प्रोविजन किया गया। तो ये नेहरू जी के और अम्बेडकर जी की सादी बुद्धिमत्ता का परिणाम था। तो इसका अर्थ है, हमारे संविधान निर्माता जो फ्रीडम फाइटर वो थे, उस समय के लोग थे, वो भी इसकी आवश्यकता को महसूस करते थे और हमने कभी इसकी आवश्यकता को वो नहीं किया। मगर उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, समय होता है, सहमतियां होती हैं। आप इस देश को लोकतंत्र को, लोकतंत्र है क्या, मैं कह रहा हूँ असहमति भी है, तब तो मिनिमम सहमति किस बात में हो सकती है, उससे लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो रहा है, तू या तो मेरी बात मान, नहीं तो मैं तेरी नाक काट देता हूँ। नहीं, पर ऐसा भी तो नहीं। पर आपको लगता है कि 70 साल बाद भी माहौल नहीं बना है? 70 साल बाद भी भारत इसके लिए तैयार नहीं है, यूसीसी के लिए? बहुत सारे सवाल रहे होंगे। और यदि आज आप समझते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, आप समझते हैं कि आज समय आ गया है, इसमें विचार होना चाहिए। पहले तो ये था 2-1 साल पहले जगते आप, चलिए आप अभी जगह हैं तो आप आम सहमति बनाइए। काहे के लिए उत्तराखंड की विधानसभा को कल सॉरी कहना पड़े? जब सेंट्रल कानून आएगा तो पता चला हमारा कानून तो कहीं रहा ही नहीं, इसमें नहीं रहा। तो हमको तो खामखा जो है उत्तराखंड को तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनाया जा रहा है। ये तो केंद्र सरकार को हिंदू मुसलमान अब उनको लग रहा है और कोई नहीं इशू है जिससे जो सवाल है उनका जवाब दिया जा सकता है, तो उसको लाने के लिए ये बात कही जा रही है। ऐसा लग रहा है आप कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट बना करके हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर जो है, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप कैसे एक लेजिस्लेशन बना सकते हैं?
नहीं, पर क्या ये अच्छे दिल से, खुले दिल से बनाइए, बातचीत करिए। हम विरोध थोड़ी कर, हम क्या आपका हाथ पकड़ लेंगे बातचीत करने में? तो आप ये कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं कर, तो इनके दोस्त रहे हैं, देखिए उन्हीं को शंकाएं। हाँ, और ये शंकाएं आज ही नहीं की उन्होंने, जब गवर्नमेंट में थे तब भी व्यक्ति की। हाँ, उन्होंने जब इनके पार्ट थे उस समय भी कहा नहीं इस मामले में भैया कुछ नहीं, इस मामले में हमारे रिजर्वेशन है। हाँ, क्योंकि सिखों की कई अपनी विशेषताएं हैं। हाँ, सिख धर्म को कई तरीके के विशेषताएं हैं जिनका वो संरक्षण करना चाहेंगे। हाँ। तो एक कानून के तहत अब सबको कृपाण रखने की इजाजत थोड़ी दी ना, लेकिन उसका तो इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना हरीश जी। देखिए, हम तो उन 5 विषयों के बारे में बात कर रहे हैं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ, वी आर टॉकिंग अबाउट अडॉप्शन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। तो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके लिए सबके लिए समान आचार संहिता नहीं होनी चाहिए, सबके लिए तो समान अधिकार होने चाहिए ना उसमें। तो ये तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये दायरे, इसमें दायरे कैसे, जब आप जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस देश के अंदर एक ही कानून होगा, तो एक ही कानून होगा तो उसके जो अभी तक कई तरीके के मल्टीपल कानून हैं, इसको किस तरीके का राइट प्राप्त होगा? ये संवैधानिक, ये मूल अधिकार का राइट प्राप्त होगा या किस तरीके का राइट प्राप्त होगा? पर सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स पर को तो, में तो एक ही लॉ आएगा ना। फिर जो बाकी पहले के थे वो तो बाय डिफॉल्ट डिफंक्ट हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। जी, मैं आप ही की बात को ले लेता हूँ। यदि ओवरराइड करेगा तो जो हमने आरक्षण का अधिकार दिया है, कानून बनाया है, सब वो किया है, उस पर कल कुछ लोग सवाल उठाने लग जाएंगे, कई बातें आएंगी। वो तो कुछ भी संभव, इसी चीज में संभव करे तो कुछ भी संभव। उसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। आप जब ओवरराइडिंग कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले के बनाए कानूनों पर आपका क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। आप केवल उसको जब एक देश एक कानून की बात करते हैं, हाँ, आप ये कहते हैं नहीं तो इस दिशा में एक कदम है हमारा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में, तो 1-2 चीजों को ले रहे हैं, तो आप वो करिए, स्पष्ट बताइए कि नहीं ये तो नहीं, पर सिविल कोड है, टुकड़े वाला है। अब एक उत्तराखंड वाला, गुजरात वाला एक नया प्रयोग हो रहा है, जहाँ चुनाव आए वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बाकी समय कुछ काम मत करो, जनता के सवाल हल मत करो, अंत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की छाता लेकर के चुनाव में निकल पड़ो। अब ये सब चीजें नहीं चल पाए। तो आपको लगता है कि चुनावी जुमला अगर होगा तो नहीं चलेगा, बट अदरवाइज सोच विचार करके आप सही मंशा से लेकर आ रहे हैं तो फिर इसका कोई विरोध नहीं करेगा। एक माहौल बनाइए जहां सब इसके लिए एक्सेप्टेबल हो और माने इसको। हरीश रावत जी, अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते सर।